Namaskar and good morning to dear brothers and sisters of Arunachal Pradesh. I am Mr. Mongol Yamso, General Secretary, come spokesperson, Arunachal Pradesh Congress Committee. Today I come here to share with you a few words about Arunachal Pradesh and the role of Congress Party. So let us try to go in brief. As you know, if we recall the past, we understand we began as citizens of Nepal, Northeast Frontier Agency, Nepal. We were citizens of Nepal. Our fathers, grandfathers were citizens. They called themselves as citizens of Nepal. And you know what was Nepal administration? Nepal administration, after British left, was taken over by Prime Minister Jawaharlal Nehru, who loved the tribals very much. Pandit Nehru had very sharp corner and emotional attachment with the tribal people of Northeast as well as Arunachal Pradesh in particular. So, tracing the history, modern history from the year 1950 to 2025. If we roll back, recall the eventuality development of the Congress, it is very numerous. So, from Nepal, we were elevated to a union territory status. You know that during Prime Minister Indira Gandhi, Arunachal Pradesh came to exist as a union territory. And in the year 1987, Prime Minister Rajiv Gandhi granted statehood to Arunachal Pradesh. And Dr. Dai Ngiring was also a Congress leader. And you know what he did? He brought about Panchayat Raj system in our Arunachal Pradesh, then Nepal time. So likewise, the Congress has enough of innermost contribution to this state of Arunachal Pradesh. Now I go forward with more infrastructural development what the Congress has done. It is inter-district trans highway brought by Congress. Today we have 2-lane roads, inter-district connectivity. This is a gift of Congress party. We have newly built Arunachal Civil Secretariat building office, which was funded by Congress government. We have new Arunachal Legislative Assembly building, gifted by Congress government. We have outdoor stadiums. We have Jawaharlal Nehru College, JNC, established 1964, gifted by Congress. You know, JNC has been like a Cambridge University over the last 6 decades, 60 years. And Congress has gifted university at Doimuk and again elevated it to a central university during the period of Prime Minister Dr. Manmohan Singh. So this is how Congress has been rendering very, meaningful, impactful contribution to Arunachal Pradesh. Now, what is BJP? Who is BJP? Already we have Arunachal Pradesh created, carved, made by Congress, and now yesterday, कल परसों आया कोई बीजेपी और few of our Congress 42 MLAs
if you remember, they were elected from Congress ticket and they ran away to PPA, defected from PPA after 6 months of spending their leisure time. They ran to BJP. And again from BJP, they ran back to Congress. And from Congress, again this party ran to BJP. This is what is happening around in Arunachal politics. It has become a very ridiculous culture. So no one is a true leader, no one is a visionary leader. यहाँ भगोड़े के नेताओं ने सरकार चला रहे हैं at the dictate of सेंटर बीजेपी. अब अरुणाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस आना बहुत जरूरी है, आवश्यक है. मेरे भाइयों और बहनों, आई टेल यू, कांग्रेस मस्ट कम बैक इन अरुणाचल प्रदेश बिकॉज बीजेपी से कभी अच्छे दिन आने वाले नहीं है. You see, the BJP rule state in our neighboring northeast मणिपुर में क्या हुआ? जब तक इबोबी सिंह जी के कांग्रेस सरकार चल रही थी, वहाँ शांति का माहौल था, विकास का माहौल था, भाईचारा का माहौल था. लेकिन मणिपुर में जैसे जैसे नरेंद्र मोदी साहब के जो जुमलेबाजी भाषणबाजी से स्मृति ईरानी लोग आए गए, बीजेपी जब वहाँ अपना वो एजेंडा चलाने लगा तो लोगों को बेवकूफ़ बना के आज का स्थिति परिस्थिति ये है कि एवरीवन सेइंग मणिपुर बर्निंग. वाई बर्निंग? डबल इंजन सरकार है, सेंटर बीजेपी है, मणिपुर स्टेट बीजेपी है, तो क्यों वाई मणिपुर बर्निंग? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वेरी अनप्लीजेंट एलिमेंट्स, असामाजिक तत्व जैसे कोई मौजूद है कि जिसके चलते मणिपुर में शायद आग लगे हुए हैं. अब वहाँ नहीं ख़त्म हुआ. 2019 में मैंने इलेक्शन मैनिफेस्टो का लंबा चंबा लिस्ट जो लद्दाख के लिए बनाए ताकि लद्दाख में बीजेपी का कब्जा जमा कर सके. तो आज 2019 से लद्दाखी लोग अपना हक मांगते मांगते जो बीजेपी ने झूठे वायदे किए थे, they were turned deaf ears and blind eyes. यूनियन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, पीएमओ ऑफिस से लद्दाख को कोई रेस्पॉन्सेस नहीं है. कितना डेमोक्रेटिक पीसफुल धरना करते करते लद्दाख का जो डिमांड्स है, मांग है, और लद्दाख को जो बीजेपी ने वादा किया था, उन्होंने खुद बीजेपी ने वादा किया, निभाया नहीं है, झूठ बोल दिया. जैसे बीजेपी इलेक्शन समय में अपना जुमलाबाजी जहां तहां ऐसे फोर्स प्रॉमिस करते रहते. तो लद्दाख का स्थिति आप देखो, यू लुक एट लद्दाख, द सिचुएशन ऑफ द ग्रेवियस सिचुएशन ऑफ लद्दाख टुडे. द मोस्ट पीसफुल रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट साइंटिस्ट हु हैज ऑलवेज बीन पीसफुल, उसको ही कुछ चार्जेस लगा के बदवावटी करके क्या क्या झूठा आरोप लगा के आज जेल में बीजेपी ने अरेस्ट किया. तो इससे साबित ये होता है कि हम सभी को हर स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में भी सावधानी बरतना होगा बीजेपी से, वरना अंजाम क्या होगा, नतीजा कभी का अच्छा नहीं होता है बीजेपी के साथ. आज अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा लगने लगता है कभी कभी कि हमारे ट्राइबल में लड़वाने जा रहा है ये बीजेपी का जो एजेंडा है. निंदित, नफरत, जातिवाद, अशांति, झूठ फैलाना. अब सियांगधाम को लेकर चलो, झूठ मूठ का वहाँ जबरदस्त फोर्सफुल इंड्यूसमेंट, फोर्सफुल एक्टिविटी, किसी को फोर्सफुल इंड्यूसमेंट, एक दो आदमी को उठा के एमओयू, जबकि 98% आर अगेंस्ट मेगाडम.
कुछ एक दो लोगों को कुछ इंड्यूसमेंट दे के MOU करा, और फोर्सफुल आर्म फोर्स लगा के किसी को डरा धमका के FIR करके जो मेगा डैम के विरोध में खिलाफत बोलते हैं उसका ऊपर केस तोड़ना, ये बीजेपी का देखो कल्चर, संस्कार कि मानो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेटिक वॉइस अब खत्म हो चुका होगा। इस प्रकार का स्थिति बीजेपी, इसीलिए बीजेपी को पेसिस्ट, टिरेनिकल पेसिस्ट बोलते, तानाशाही, लाइक ए डिक्टेटोरियल ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि जो जर्मनी में एक समय हिटलर का नाम से जाना जाता था, यहाँ नहीं हो सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो डेमोक्रेसी लिखा है। यह कहाँ का इस प्रकार का जो बीजेपी का जो हरकतें है, दिस इज वेरी रिडिकुलस एंड कंडेमेबल एवरीवेयर। देयरफॉर मेरा अपील है कि अरुणाचल प्रदेश में हर जिला में, हर सर्कल में, हर गांव में आप जाग जाओ। अब कांग्रेस पार्टी को हमें फिर से लाना है। कांग्रेस पार्टी से आप जोड़िए। अब पंचायत इलेक्शन से हम शुरू करेंगे कि अरुणाचल में फिर से कांग्रेस पार्टी को हमें लाना होगा। कांग्रेस पार्टी ही एक विकल्प रह गया कि कल्याणकारी काम के लिए, विकासशील प्रदेश बनाने के लिए और सब वर्गों के, सब जातियों को शांतिपूर्ण से विकास के मार्ग पर ले चलने वाला कांग्रेस पार्टी को हमें फिर से लाना है। युवाओं को रोजगार देने वाला, युवाओं के जज्बा को समझने वाला कांग्रेस पार्टी को, किसानों के जज्बा को समझने वाला, किसानों के पीड़ा को समझने वाला कांग्रेस पार्टी को अरुणाचल में फिर से लाना है। मैं अपर सियांग जिला का प्रभारी हूँ, तो 34 तुतिंग यिंगकियोंग में कांग्रेस का MLA इस बार हम लाना है। पोर्टी मारियांग गेको में कांग्रेस का MLA लाना है, और उसी प्रकार से सारा अरुणाचल प्रदेश में हमें कांग्रेस का MLA